जी, अस्सलाम वालेकुम. All right, so our topic for today, or the story that we are going to study today, is Real Time by Amit Chaudhary. Story का क्या नाम है? It's a short story, Real Time by Amit Chaudhary. Real Time by Amit Chaudhary. Amit Chaudhary, as the name indicates, he is an Indian writer. नाम से ही पता चल रहा है कि he is an Indian writer and he is from India. And he is like one of the best writers of his generations. ये उनके लिए कहा गया है by someone very famous. तो let's study a little about him कि अमित चौधरी उनकी early life के बारे में, उनके works के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, and then like the routine, the characters, the summary, and then the themes of the play we'll be discussing. Achha. Now, Amit Chaudhary, he was born in Calcutta, in India, in 1962. 1962 में पैदा हुए थे. कहाँ पे? In India, in Calcutta. And then he grew up in Bombay. He got his early education from Cathedral and John Cannon School. It was in Bombay. He took his first degree in English from University College London, and he is now currently he is a professor of contemporary literature at University of East Anglia. आजकल वो he is professor, ठीक है, he is alive, and he has his degree from English degree from University College London and his early education from Cathedral and John Cannon School. His father was like he is from a rich background. His father is his father is a businessman. He's an established businessman, and his mother is a singer. Okay, so Amit Chaudhary, he is the author of 7 novels. 7 novels उन्होंने लिखी है till now. His first book of essay, he has 2 books of essay. The first was published in 2008 and the second was published in 2013. And as I told you earlier, Chaudhary has already proved that he can write better than just about anybody of his generation. अपनी generation के उसके जितने भी writers हैं वो उन सब से अच्छा लिख सकता है. This has been told about Amit Chaudhary by different people, different famous people. और भी है जो there is a lot said regarding him. एक और जगह पे कहते हैं one of his generation's best writers. ठीक है, उसको कहा जाता है one of his generation's best writer. Then at some other point it has been said that one of the most talented and versatile writers of his generation. अब ये लोगों के different famous लोगों के views हैं कि अमित चौधरी पे. Then it has been said, in the gloriously crowded world of modern Indian fiction, Amit Chaudhary stands out as a master craftsman who, with exquisite wit and grace, can depict a rapidly changing India in a single life and an entire life in a single detail. तो ये जो है उनकी appreciation में ये बातें कही गई हैं. He has won so many awards. बहुत से awards उन्होंने जीते हैं अपनी writing के लिए. For instance, the Commonwealth Literature Prize, Betty Trask, Encore, Los Angeles Times, and then there is this Sahitya Academy Award. ये सारे awards उनको मिले हैं. And his first novel, this is the first novel, that is A Strange and Sublime Address. It is included in the Kalam Toybin. ठीक है, ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट हैं और बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है. तो उनके जो फर्स्ट नॉवल है ये उनके लाइक इन द 50 जो बेस्ट नॉवेल्स होते हैं ना, 50 years के लास्ट 50 years के जो 200 बेस्ट नॉवेल्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट नॉवल है स्ट्रेंज एंड सब्लाइम एड्रेस, दैट हैज बीन एडेड टू दोज नॉवेल्स. So his first novel is considered as one of the best novels of the last 50 years. Okay, now this story, The Real Time, it has 3 characters. The first is Mr. Mitra, and अब Indian story है, so obviously नाम भी फिर उनके जरा Indian ही होंगे. So it's Mr. Mitra, Mrs. Mitra, and then there is another character that is Anjali. Mr. Mitra is an uninspired, bored, middle-aged and professional man. He is going to attend a funeral, and then when he attends the funeral and when he leaves the funeral, he has this feeling of
dissatisfaction. वो satisfied नहीं है, he's like not happy with the going to the funeral and all that. So he's kind of uninspired है, bored है, professional businessman है, professional kind of person है, और कोई middle age के है, ना कोई young है, ना कोई बहुत old है. But क्या होता है कि he's like uninspired, किसी चीज से वो inspired नहीं होते. He's like not happy with anything, discontented person है. अब मिसेस मित्रा ही शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर मित्रा, और एक स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. दैट कैरेक्टर इज अंजलि. और एक जो मिसेस मित्रा है उनकी दूर की रिश्तेदार है, लाइक इतनी दूर की रिश्तेदार है कि शायद कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की, लेकिन हाँ जस्ट जान पहचान है कि ओके यस शी इज़ लाइक माय डिस्टेंट रिलेटिव अंजलि. तो अंजलि उनकी दूर की रिश्तेदार है. एंड अगर हम उनके व्यूज़ को कंपेयर करें मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा के, तो व्यूज दोनों के थोड़े से डिफरेंट है. लेकिन जस्ट लाइक हर हस्बैंड शी इज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द फ्यूनरल. किसका फ्यूनरल है? अंजलि का. ठीक है, अंजलि दैट इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. शी इज अ यंग वुमन. ठीक है, एक यंग वुमन है. she is married but she is not it is not a happy marriage. It's and she is like unhappily, वो unhappy marriage में है, and she has left her husband and now she was living in her parents house. लेकिन maybe her parents were not supportive, or something might have happened that she has committed suicide from her parents house. तो अब अंजलि का funeral है जहाँ पे Mr. और Mrs. मित्रा आ रहे हैं to attend that funeral. Okay, so this short story, Real Time by Amit Chaudhary, it revolves around a memorial service for a young woman, Anjali, who committed suicide by jumping off the third-story balcony of her parents' apartment building in an unnamed city in India. We learned that her marriage had not been happy. She had left her husband before, and this time she had asserted that she had no intentions of going back to home. Her parents were said to be a little unsympathetic, and the end result was that she killed herself. The story कैसे start होती है कि एक suicide हो जाता है. ठीक है, उस कौन करता है? अंजलि commits suicide. तो फिर लेटर ऑन हमें पता चल जाता है कि शी वॉज लिविंग इन एन अनहैप्पी मैरिज, एंड शी वॉज लिविंग अनहैप्पी मैरिड लाइफ. और अपने हस्बैंड के साथ वो काफ़ी बार झगड़ा कर चुकी थी, और घर भी वापस आ जाती थी, फिर वापस चली भी जाती थी. लेकिन बट दिस टाइम दिस वाज समथिंग ह्यूज, दिस वाज समथिंग बिग, एंड शी हैज़ असर्टेड कि वो वापस नहीं जाएगी. So she was for a while she was living at her parents' house, but it seems कि उसके parents शायद they were unsympathetic towards her, or they were not as supportive as the parents should have been. So क्या हुआ कि she committed suicide from her parents' house. उधर से उन्होंने balcony से jump करके suicide कर लिया and she died. अब उसका funeral है. ठीक है, उसके last ceremonies हो रही हैं. Now, this story is just like the other story. This is narrated in the third person, और जो मिस्टर मित्रा है बस उसी के point of view से ये story narrate की जा रही है. So अब क्या है कि मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा they are coming to attend the funeral, but they seems, वैसे start में तो बहुत interested लग रहा है क्योंकि उनको उनके घर का नहीं पता. तो रास्ते में कभी वो उनका ड्राइवर रुक के कभी एक बंदे से पूछ रहा है, कभी दूसरे बंदे से पूछ रहा है घर का पता, कभी तीसरे बंदे से, एंड आफ्टर लाइक लॉट ऑफ स्ट्रगल उनको घर मिल जाता है अंजलि का. तो यहाँ से तो ऐसे लग रहा है जैसे they were like really interested and they were really sad for the family and they wanted to like to go to console them, they wanted to go for the condolence, ऐसे लग रहा था. लेकिन then something else happened. क्या हुआ कि when they reached, after somehow when they managed to reach the house, जाते ही उन्होंने क्या कि अंजलि के जो फादर थे उनको एक ट्यूब रोज दे दिया, जो इंडियन कल्चर से हम सब अवेयर है. लाइक दिस फूलों का हार इज सो कॉमन इन देयर फ्यूनरल्स. So they diya without saying a word, मुंह से एक लफ्ज, because this is the normal practice when you go to a funeral, you meet like the main people. अगर now for example here the father of Anjali, आप उनसे आपको मिलना चाहिए, आप उनसे बात करें, एक दो बातें करें, उनको तसल्ली दे. But no, he just went there. He handed over him the roses and then start roaming about here and there, going from one room to another, looking at the objects for a while, then looking at the other object, and like trying to show himself so uninterested कि मुझे कोई इन रस्मों में, इन rituals में कोई interest नहीं है. So this is the thing that happened.
अब जो मिसेस मित्रा है, शी इज लिटिल थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज शी वेंट देयर, शी मेट अंजलि's mother and she consoled her and she has those words of condolence with her, और she sat with them. लेकिन क्या है कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, शी टोल्ड हर हस्बैंड कि जैसे ही बस अंजलि के फादर से मिलो, जस्ट शो हिम हर फेस, जस्ट प्रूव योर प्रेजेंस कि हाँ मैं आया था। जैसे ही वो मिले और मैं अंजलि के मदर से मिलूं, सो क्या कहते बस फिर हम चले जाएंगे। सो दिस मीन्स लाइक दे वर देयर जस्ट टू शो अप, सिर्फ वो दिखाना चाह रहे कि हाँ हम आए हैं, हम अपेरेंटली हम आपके दुख में शरीक है और हमें बहुत दुख है, अफसोस है, बट नो, दे वर जस्ट देयर टू प्रूव देयर प्रेजेंस कि हम आए, बस ये उनके लिए बड़ी बात थी कि वो आए। सो दिस वाज द केस। आफ्टर दैट क्या हुआ कि when they met to with the parents of Anjali, then they left, और जब बाहर वो on way back to their home, what they did, they bought some like a really good food for them because they were hungry, और घर जाके they enjoyed their food and their normal routine life. So apparently a simple story, just like all the other stories, simple सी story है, लड़की है खुदकुशी करती है, फिर मिस्टर और मिसेस मित्रा है, उनके distant relatives है, वो उनके funeral में जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? just for the sake of showing their presence कि हाँ हम आए, but in actual they are not interested in the ritual, but they are interested in the tradition, क्योंकि रिवायत है कि कहीं पे डेथ हो जाती है तो आपको जाना है, अब आपको अफसोस हो, आपको अफसोस ना हो, बस आपने जाना है। एंड दिस इज सो रेलिवेंट टू द मॉडर्न सोसाइटी। आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, दिस इज लाइक द perfect, this is the epitome of this this is the perfect representation, this is the epitome of the modern society, perfect representation। आजकल भी यही होता है, आपको किसी के फ्यूनरल की खबर मिलती है, what you do, you dress up, ठीक है, अच्छे खासे, यू जस्ट यू गो टेक अ बाथ, यू ड्रेस अप, बहुत अच्छे तैयार होके आप जाते हैं और फ्यूनरल अटेंड करके गॉसिप्स करके आप वापस आ जाते हैं। दिस इज व्हाट, नो ऑफेंस बट दिस हैपेंस, ठीक है, आजकल यही हो रहा है। सो इन दिस स्टोरी द मॉडर्न मैन, ठीक है, द फोकस इज ऑन द मॉडर्न मैन एंड देयर इज क्रिटिसिज्म ऑन द मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को क्रिटिसाइज किया गया है कि वो क्या है, कि ही इज लाइक सो सेल्फ सेंटर्ड, कि अपने अलावा तो उसको, अपने अलावा और अपने काम के अलावा उसको और कुछ नजर ही नहीं आता। मिस्टर मित्रा जब फ्यूनरल अटेंड करते हैं तो क्या कहते हैं कि लाइक इधर आके तो मेरा रियल टाइम वेस्ट हो गया है, माई रियल टाइम हैज बीन वेस्टेड बाय अटेंडिंग दिस फ्यूनरल। उनका रियल टाइम क्या था? वो उनका अपना टाइम था, उनका अपने जो बिजनेस में जो टाइम गुजारते हैं वो था, जो अपने घर में टाइम गुजारते हैं वो था, जो अपने दूसरे रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं वो उनके लिए वो रियल टाइम है। बट व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे, राइटर कहना ये चाह रहे हैं कि वो रियल टाइम नहीं है जो आप अपने बिजनेस में लगाते हो, रियल टाइम तो वो है जो आप, अगर किसी को आपकी जरूरत है तो आप जाओ उनका दुख बांटो, उस दुख बांटने में जब आप किसी के साथ टाइम गुजारते हो, दैट इज द रियल टाइम। दिस इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्विंस। लेके ठीक है, और ही इज नॉट there to fulfill the form of going into the funerals because that's the tradition and people go to the funerals, so बस इसलिए वो भी चले गए हैं, अपनी presence लगा दी कि yes we are present, और apparently अच्छा अब अगर प्रेजेंस लगाने तो चले गए हैं, ठीक है। कुछ लोग तो होते हैं कि अगर कंट्रास्ट किया जाए मिस्टर और मिसेस मित्रा को, दोनों हाजिरी लगाने गए थे, दोनों, ठीक है, इंटरेस्टेड कोई भी नहीं था, ना मिस्टर मित्रा जाना चाह रहे थे ना मिसेस मित्रा जाना चाह रही थी, लेकिन दोनों क्यों गए? जस्ट टू मार्क देयर प्रेजेंस मार्क करने तो आ गए हो, जो अब चलो अब आ ही गए हो तो जस्ट डू समथिंग के जिससे शो हो कि यू आर लाइक अपसेट ओवर द इंसिडेंट, कि जो हुआ है आपको उसका अफसोस है। तो मिसेस मित्रा ने तो किया, she met with Anjali's mother and like other women and she spent time with them and they talked and like she said that she's really upset and she's devastated by the news and all that. But Mr. Mitra, no, he's going to roam here and there, going from room to room, looking at the objects and not talking with anyone, not sitting with anyone, and being so proudy at a funeral, जहाँ जिसका वो अपनी प्राउड और अपनी सेल्फिशनेस शो करने का जो मौका नहीं था, वो उधर भी वही काम कर रहे थे। सो दिस इज द मॉडर्न मैन, he is badly criticized in this स्टोरी। जी, थीम्स इसके है डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, डिसकंटेंटमेंट का एक थीम है, there is a theme of appearance and then the theme of selfishness and self-importance।
सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस की थीम है इसमें। डिसकंटेंटेड क्या है, डिसकंटेंटेड कंटेंटमेंट की ये थीम है कि लाइक मिस्टर एंड मिसेस मेथर दे आर गोइंग टू अटेंड अ फ्यूनरल बट अनविलिंगली, कोई उनको शौक नहीं है जाने का, बस वो अपनी वो खुश नहीं है, अपनी ना खुशी से वो जा रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। पर्पस उनका ये है कि बस अपने चेहरे उनको दिखाया कि हाँ ये दो चेहरे भी आए थे और आपके दुख में शरीक थे, लेकिन कोई वो दिल से नहीं था और कोई सेरेमनी में भी उनको इंटरेस्ट नहीं था। और वो ऐसी जो रिचुअल्स होती थी जैसे फ्यूनरल या शायद शादी के भी कुछ रिचुअल्स ऐसे होते, वो उनके खिलाफ थे। कौन? मिस्टर मित्रा। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, ही वाज द ओपोनेंट। वो मुखालिफ थे इन रिचुअल्स के कि ये इससे क्या होता है कि इसमें आपका जो रियल टाइम होता है जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। So Anjali was also discontented with her life. She was married, but she was not happy. She was living an unhappily married life. And then when she left her husband and she came to her parents' house, जब अपने parents के घर आ गई थी, then again she was not happy there. Reason कुछ भी हो सकता है, can be unsupportive parents, can be unsympathetic parents, या कुछ और कोई भी reason हो सकता है. But she was not even happy there, and she committed suicide. So this theme of unhappiness is like very prominent in the story real time. There is a theme of appearance. Everyone in the ceremony is to keep up appearance, unwilling presence of participants. ठीक है, nobody ठीक है। अब मिस्टर मित्रा क्या कर रहे हैं, वो सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द राइटर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल दोज हु आर अटेंडिंग द पार्टिसिपेंट्स, ही इज रिप्रेजेंटिंग देम विद मिस्टर मित्रा के उस सेरेमनी में जितने भी लोग आएंगे वो सारे मिस्टर मित्रास हैं। ठीक है, एवरी मैन इज मिस्टर मित्रा। दे आर देयर जस्ट टू कीप अप देयर अपीयरेंस, दे आर देयर जस्ट टू मार्क देयर प्रेजेंस, दे आर देयर जस्ट टू शो अप देयर फेसेस, जस्ट टू कीप अप द ट्रेडिशन। नो इंटरेस्ट इन रिचुअल, कोई रिचुअल्स में रस्म रिवाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ट्रेडिशन में इंटरेस्ट है कि अगर कोई फ्यूनरल हो जाता है तो बस उधर, अगर कोई फौतगी हो जाती है तो आपको उधर जाना होता है। ठीक है, आपको सिंपैथी हो, आपको अफसोस हो, अफसोस ना हो, बस जाना होता है। सो एवरीवन इज लाइक एवरी मैन इज मिस्टर मित्रा इन दैट सेरेमनी। ठीक है, सिर्फ अपनी अटेंडेंस के लिए वो लोग आए हैं। They are not there for the real condolence. They are not. They don't have any sympathy towards the family. They don't have any feelings for them. They don't have any feelings for the dead. They don't have any feelings for the parents. कि वो किस अपनी बेटी को like उनकी एक ही बेटी थी। अंजलि was the only daughter of their parents. हाँ, दो बेटे थे but she was the only daughter. और वो दे लॉस्ट their daughter, तो उनकी फैमिली पे, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रहा होगा। लोगों को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। आते हैं, शो अप करते हैं, खाना खाते और चले जाते हैं, गॉसिप्स करते और चले जाते हैं और बाद में भी गॉसिप्स करना नहीं छोड़ते। सो दिस इज व्हाट अपीयरेंस ऑफ द थीम इज prominent in this story. Then there is selfishness and self-importance. Selfishness और self-importance की theme है। Mr. Mitra is a selfish character. He is attending the ceremony for merely providing his presence. He has no feeling of sympathy, no interest in the ceremony, no importance for others, no care for others. तो ये एक selfish character हुआ है। ठीक है, selfish character और self importance, उधर वो क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि funeral में क्या कर, इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं। He's just like wandering here and there. तो वो एक सेल्फ इम्पोर्टेंस की थीम है कि ही इज अ बिजनेसमैन एंड इट डज नॉट सूट हिज स्टैंडर्ड टू गो एंड सिट विद द पीपल अटेंडिंग द सेरेमनी। शायद वो उनके शान के खिलाफ हो। सो लाइक दिस थिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस इज द स्टोरी कि क्यों वो इधर उधर जा रहे हैं। अब अगर अटेंडेंस लगाने और प्रेजेंस लगाने आ ही गए हो तो किसी के साथ बैठ के बात कर लो, बट नो, ही इज नॉट सिटिंग विद एनीवन। किसी से उन्होंने बात नहीं करनी, बस अकेले ही इज लाइक स्टैंडिंग और सिटिंग समवेयर अलोन। सो दिस सेल्फ इम्पोर्टेंस थीम है जो आपको हर जगह अपनी क्या होती है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि अपना आप आपको हर जगह नहीं दिखाना चाहिए, कहीं पे अपने आप पे जरा अपने आप को कॉन्सील भी रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रिवेंट भी करना, वो थोड़ा एक्ट करना होता है, तो थोड़ा सा प्रिटेंड भी आपको करना होता है। हर जगह पे आप ऐसे नहीं होते जैसे आप असल में होते हो। एंड देन सेल्फिशनेस, ही इज अ सेल्फिश कैरेक्टर बिकॉज मिसेस मित्रा तो हाँ इनिशियली शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द फ्यूनरल, लेकिन जब वो वहाँ चली जाती है तो फिर वो देन शी इज लाइक ओके, अब आ गए हैं तो अब खाना भी लगने वाला है तो खा के चले जाते हैं। ही इज लाइक नो, वो उसको खाना खाने नहीं देते और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर रास्ते में ही बाइज फूड फॉर हिमसेल्फ। सो ही इज लाइक अ सेल्फिश कैरेक्टर हु डज नॉट केयर फॉर अदर्स।
ना उसने अपनी वाइफ की के लिए केयर, ही हैज़ नो केयर फॉर हिज वाइफ। और एक ये भी है कि पूरे फ्यूनरल में उनकी जो वाइफ थी और वो जो थे, दे वर लाइक स्टैंडिंग फार डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ना वो एक दूसरे से वो बात कर रहे थे ड्यूरिंग द होल सेरेमनी, एक दूसरे से अलग कर रहे थे। तो दिस इज लाइक शोइंग, डायरेक्ट हमें नहीं बताया बट दिस शोज कि शायद उनके अपने भी रिलेशंस कुछ खास नहीं है। इट्स नॉट लाइक, सो दिस कंटेंटमेंट हम उधर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि उनके अपने रिलेशंस भी अच्छे नहीं चल रहे। So this Mr. Mitra, he has no care for his wife, and he has no care for the family who has been who is suffering from the tragedy, from the tragic death of their daughter. तो उनके लिए भी कोई sympathy, कोई care नहीं है, और ना ही दूसरे लोगों के लिए कोई importance है। So this was the story, and the theme, the title of the story, that is real time. मैं आपको बता दिया कि real time is like according to the people like Mr. Mitra and according to the modern man, real time हम उस time को कहते हैं जिसमें हम शायद कोई productive करें, जिसमें हमें कोई फायदा हो, जिसमें हमारा कोई फायदा होता है, कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है, उस काम में जब हम कोई टाइम लेते हैं, so we call it the real time। ठीक है, वी पीपल हम इस तरह कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमित चौधरी, हु इज द राइटर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी रियल टाइम, ही सेज दैट नो, the real time is that time which you spend with people who needs you in their hard times। कि जब कोई बंदा कोई हार्ड टाइम से गुजर रहा है, तो जब आप उसके साथ बैठ के उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ कोई टाइम गुजारते हैं, उनका दर्द बांटते हैं, उनका दुख बांटते हैं, यू शेयर देयर पेन, यू शेयर देयर फीलिंग्स, वो टाइम जब आप स्पेंड करते हो वो आपका रियल टाइम होता है। दैट इज द रियल टाइम एंड नॉट द टाइम दैट यू हैव जस्ट डेडिकेटेड टू योर सेल्फ। जो आप अपने ज़ात के लिए आपने जो टाइम डेडिकेट कर दिया है, दैट इज़ नॉट द रियल टाइम। ठीक है, वो रियल टाइम नहीं है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी का थीम। यस, रूडनेस है, लाइक व्हेन यू आर सेल्फिश पीपल आर ऑफन रूड। सेल्फिश पीपल जो है ना, एक थीम है रूडनेस का भी है कि ही इज लाइक रूड इन सच अ वे। ठीक है, कॉन्वर्सेशन, अब मिस्टर मित्रा है तो किसी से तो वो उन्होंने बात की नहीं है, लेकिन द वे ही एंटर्ड द फ्यूनरल, द वे ही हैंडेड दैट ट्यूब रोज टू द फादर ऑफ अंजलि, जैसे उन्होंने वो किया, सो दैट शोज हिज रूडनेस। बस जाओ, फूलों का हार पकड़ाओ और चलते बनो, नो, दिस इज नॉट द वे। सो यस, दैट शोज रूडनेस। सो रूडनेस इज वन ऑफ द थीम्स ऑफ दिस प्ले, वेयर मिस्टर मित्रा is exhibiting a rude behavior towards the father of Anjali and towards the other guests also।